So, guys, we have with us Miss Dania Kamal. She is one of the most impactful influencers in Pakistan, content creators, one of the most impactful content creators as well. She has almost 200K Instagram followers and almost 1000K TikTok followers and almost 50K of YouTube subscribers. Sorry. Yeah, and the numbers don't matter, but the work that she's doing, you would want to hear about it. जो काम ये कर रही हैं, उसमें she talks about solo travel, about women reclaiming their spaces, and about promoting Urdu as a language and as a medium of storytelling. So let's hear her out. Dania, where did Okay. you start from? First of all, मैं ये कहना चाहूँगी कि I don't like the picture. What the hell is going on with her? Secondly, okay, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ अपने बारे में. क्या पता कुछ लोग मुझे जानते हो और क्या पता mostly आप नहीं जानते हो मुझे. So what I do is I started my journey as a background dancer. आज मैं एक choreographer हूँ. मैं industry में like I choreograph gigs, I choreograph. I've started like I'll tell you a small example. I did this trend called Habibi on TikTok. And that went viral, and then I ended up choreographing for Asim Azhar, for Young Sinners, for like amazing artists that I love and are on top of my list. So yeah, I think I started from background dancing, and then I did this and that and that and this, but content empowered me through everything. और आज मैं जहाँ हूँ ये जो यहाँ लिखा है आई एम द स्टोरीज आई टेल आई थिंक यही है मेरी ज़िंदगी जितनी कहानियाँ मैं सुनाती हूँ वो सारी कहानियाँ ही मैं जीती हूँ सो दैट्स मी Beautiful, beautiful. I love that line. मुझे ये बताएं कि most of the content creators in Pakistan have their own transformation journey. या How did Dania transform? ओके आई थिंक मेरी कहानी भी उतनी लाइक इट्स द सेम स्टोरी दैट एवरीवन लिव्स यू नो आई एम 22 राइट नाउ और मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया था व्हेन आई वाज 16 और बस फिर चलती गई और ख्वाब बुनती गई और बस मैं कभी रुकी नहीं और मुझे नहीं पता कि मैं कब ट्रांसफॉर्म हुई इस जर्नी में और आज मैं जहाँ हूँ वो क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ बस आई थिंक एक चीज़ है कि मैं कभी रुकी नहीं एंड दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक कि यही दिस इज़ द ओनली ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई एवर went through is कि I never stopped and I just kept going and where I am I don't know if this is the best version or it's still like yet Lovely. to come तो बस रुकना नहीं है guys चलते रहना है So that's one amazing key from her जो आप अभी सुन रहे हैं वो ये है कि stay persistent and consistent if you want to be known for your work whether it's content or otherwise. Yes. Thank you. मुझे ये बताओ यार you spoke about solo travel और आप इस पे Yeah. storytelling भी काफ़ी करते हो. What's one memorable event or challenge that you faced? Oh, okay. I was trying to find my phone because like I wrote something in it, but then वो phone मेरे सामने दे चुकी हूँ. Okay, मैं आपको बताती हूँ. Do you need it? Yeah, I actually do. I want to read something out to you guys. वैसे तो ऑडियंस में बहुत कम लड़कियाँ अभी मुझे नज़र आ रही हैं लेकिन जितनी भी ख़वातीन हैं ये आपके लिए है और मैं ये पढ़ना चाहूँगी आपके लिए. I'll tell you guys one thing. मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को किसी चीज़ से नहीं रोका है. सब चीज़ें जो भी मुझे करना था वेदर बी इट डांस बी इट ट्रैवल बी इट म्यूज़िक बी इट स्टोरी टेलिंग राइटिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में सब किया है और कंटेंट ने मुझे हर चीज़ में एम्पावर किया है एंड देयर वाज वन डे वेयर आई वाज लाइक यू नो मैं तो सोलो ट्रैवल करती हूँ मुझे तो बहुत मज़ा आता है मतलब इट्स सो लिबरेटिंग लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितनी ख़वातीन हैं मैं उन्हें भी बताऊँ और किस तरीके से बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा था एक दिन आई वाज जस्ट सो फ्यूरियस कि मैं क्या करूँ एंड देन आई रोट माई फर्स्ट स्टोरी मैंने अपनी पहली कहानी लिखी जो कि मैं सुनाना चाहूँगी जितनी भी ख़वातीन हैं इस ऑडियंस में ही उन सब के लिए है Let's find it. ठीक है ये ख़त मेरी सब सहेलियों के लिए है इस दुनिया को इस मुल्क को इस ज़मीन को हर शहर को नई शहर को
ढलती शाम को एक अंजाम को, एक आगाज से एक अंजाम तक, देखने का हक आपका है, मेरा है, हमारा है. That's great. Beautiful. There is one more thing that I'd like to read. This is something जो कि मैंने अभी तक सिर्फ लिखा है और this is not out, but I think जितनी ख़वातीन आज यहाँ हैं उनके लिए ही मैं ये कहना चाहूँगी. इन गलियों से क्या डरना है जब घर ही मेरा धरना है. चार दीवारी हो या खुला आसमान, आवाज़ पे एक औरत की तो सबने ही लड़ना है. जुर्रत पे मेरी दाद नहीं, कुछ लम्हे आज़ादी के चाहती हूँ. सुकून के, नज़रों से दूर, सांस क्यों ना लूँ खुल के, आवाज़ कोई सुन ना ले. अपनी हिफाजत के लिए किए गिरे बाँ चाक, खड़ी हूँ पहली सफ़ में. छीन कर लूँगी और चीख कर लूँगी. इस ज़मीन पे हक जो मेरा है, ठान ली है. लाना आज़ादी का अब जन के लिए सवेरा है. क्या बात है, बहुत खूबसूरत. So that's छीन you कर and me. लूंगी और चीख कर लूंगी, लेकिन आपने बड़े प्यार से ये मैसेज बता दिए सबको, तो बिल्कुल आप ऐसे प्यार ही है. से भी कर लेंगी. हाँ मतलब यही है, मतलब छीन कर लेनी पड़े या चीख कर लेनी पड़े या फिर एक नज़म लिख के लेनी पड़े या एक कहानी सुना के लेनी पड़े, लेकिन आज़ादी तो लेके रहेंगे. बिल्कुल. लड़के लेनी पड़े तो भी लेंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. They know it, my ladies They know know it. They know it. अच्छा, ये उर्दू अदब से आपका इतना लगाव, मैं इसको खालिस उर्दू में पूछने की कोशिश करूँगी कि उर्दू अदब आपका काफ़ी ज़्यादा, आपने कहा कि बड़ा आपको पसंद भी रहा है, आपने बचपन में बहुत पढ़ा भी है, तो आपको क्यों इतना ज़्यादा इसके साथ लगाव हुआ, क्यों शगफ़ हुआ? कौन आपके पसंदीदा मुसन्निफ़ या शायर हैं? और उर्दू अदब के साथ हमारा अब जुड़ना इतना ज़रूरी क्यों है, हम पाकिस्तानीज़ का, पाकिस्तानियों का? बट इस सवाल का तो बड़ा ही एक तफसील में जवाब बनता है. सबसे पहले मुझे उर्दू लिटरेचर का बचपन से ही आई डोंट नो क्यों शौक़ था, बस शौक़ था. और मुझे किसी भी लैंग्वेज से ज़्यादा उर्दू बहुत खूबसूरत लगती है. मुझे लगता है उर्दू में आप जैसे आपने अभी बात की, मैंने कहा कि मैं छीन कर लूँगी या चीख कर लूँगी, लेकिन वो बात इतनी खूबसूरत लगी कि अगले बंदे ने तो मेरा जो उसमें एक वॉयलेंस था वो तो देखा ही नहीं होगा. दिल को लगती है जाके. हाँ बिल्कुल. तो बस मुझे उर्दू शुरू से पसंद थी. मैंने माय फेवरेट राइटर इज़ मंटो. आई थिंक वो जिस तरीके से उन्होंने सोसाइटी को अपने लफ्ज़ों में लिखा है, अपनी कहानियों में लिखा है, उनसे बेहतर किसी ने भी कोई भी इस माशरे का आईना नहीं है मंटो से बेहतर. तो मैं भी आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ बनना चाहूँगी तो इस माशरे का आईना ही बनना चाहूँगी कि वो जब मुझे देखे तो उन्हें अपनी याद आए, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से. और उर्दू के इस द टाइम दैट वी आर लिविंग इन, आई थिंक हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम बस दिन ब दिन वी आर जस्ट गेटिंग वाइट वॉश्ड और हम अपनी आइडेंटिटी भूल रहे हैं. हम अपनी ज़बान भूल रहे हैं, हम अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त सब भूल रहे हैं. अब मुझे लगता है कि आप द ओनली वे टू कीप इट अलाइव इज़ टू of course contemporize it. We have to have our own touch into it, like Yes. how I dress. झुमके भी पहने मैंने, चूड़ियाँ भी पहनी है, पर जीन्स भी पहनी हुई है. So just do it your own way. लेकिन अपनी आइडेंटिटी को आपने अपना कैसे बनाना है? like you're not from the west, आप पाकिस्तान से हैं, तो आप किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को अपनाएंगे? कोई तो एक तरीका होगा जिससे आप अपने आप को अपनाएं. तो अपने रूट से जुड़े रहना, अपने रूट से जुड़े, अपने आप को अपनाएं. लाइक बी प्राउड ऑफ हु यू आर. लाइक कब तक भागते रहेंगे आप उर्दू से? कब तक भागेंगे शलवार कमीज से? कब तक भागेंगे आप? हम यही हैं और आप भी यही हैं, तो हम जितना जल्द इसे अपना लें उतना ही बेहतर है. क्या बात है, बहुत खूबसूरत. अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दानिया एज अ पर्सनालिटी मैं देख सकती हूँ कि यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, बट डेफिनेटली ये दानिया को बनने में सपोर्ट या बगावत, कुछ तो करना पड़ा होगा. सपोर्ट थी या बगावत थी, ये बताओ. Well, that's a slippery slope right there. आई थिंक मैं जो भी हूँ, मेरा ज़र्रा ज़र्रा, मेरे वजूद का ज़र्रा ज़र्रा बगावत है और बगावत की वजह से है. तो डेफिनेटली बगावत थी. आई मूव्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई वाज 16. मैं 16 साल की थी जब मैं घर से मूव आउट हुई.
मुझे डांस करना था, मैंने डांस किया। मुझे लिखना था, मैंने लिखा। मुझे म्यूज़िक बनाना था, मैं म्यूज़िक बना रही हूँ। तो हाँ, मैंने तो हर किसी से बगावत की है। मैंने खुद से बगावत की है, और ख़ानदान से बगावत की है, माशरे से बगावत की है, इन गलियों से बगावत की है, इन सहराओं से, इन आसमानों से, ज़मीनों से, सबसे बगावत करके बहुत आज मैं जो शायराना हूँ वहाँ मिजाज है पहुँची हूँ। माशाल्लाह। ओके, ब्यूटीफुल। और आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा है एज अ कंटेंट क्रिएटर टू रीच वेयर यू आर टुडे? um, अ, क्या नहीं करना पड़ा मुझे सैक्रिफाइस। जब आप लोगों के लिए अपने आप को खोल देते हैं, तो आप अपने आप को खो भी देते हैं। तो इन द प्रोसेस आई थिंक मैंने कई दफ़ा अपने आप को खोया है, और कई दफ़ा अपने आप को खोजा है, और खोया है, और पाया है। एंड आई सैक्रिफाइस माई सेल्फ। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट सैक्रिफाइस यू कुड मेक, राइट? योर सेल्फ। आई लव यू। Dania, what does it take to be a good content creator? Okay. I think being a good content creator is कि जब आप खुद ही को भूल जाते हैं, जब आप ये भूल जाते हैं कि आपने एक पीस ऑफ वीडियो से कितने लाइक्स लेने हैं, कितने लोग देखेंगे, कितना फेमस, ये जब सब आप भूल जाते हैं, और जब आप व्हेन यू रियलाइज दैट आपकी आपके पास एक आवाज़ है, और आप उसे लोगों को सुना रहे हैं, तो आप क्या सुनाना चाहते हैं लोगों को? और व्हेन यू रियलाइज यू हैव टू ऐड वैल्यू इन पीपल एज अ कंटेंट क्रिएटर, यू कैन नॉट जस्ट बी समवन हु इज डूइंग इट फॉर द ग्राम। You cannot be a good content creator if you're just doing it for the likes. You have to add value in people, and I think जब आप ये realize कर लेते हैं कि आपका content जो है वो एक it's मतलब it's something that it's a story, it's there, it's out there, it's always going to be out there. So what are you saying कि क्या कैसे use कर रहे हैं आप उस platform को? So I think adding value, when you add value into people as much as you add value into yourself, then you're a good content creator. Lovely. I agree, 100%. What's the up and coming platform जिस पे content creators को होना चाहिए? LinkedIn. I think as content creators, we think that we don't need it, but we need it to connect with the right people, and to network, and also to have our portfolio on there, of course. So, yeah, LinkedIn. Have you joined it? Yes, sir. When did you join it? I think I've been on LinkedIn for the past 4 years now. Very good. Excellent. And what's your message for our future content creators, especially women, but also young boys and men who are looking to be in this field? Well, my message is that कि आपने perfectionism के पीछे नहीं भागना है, because that's something that will kill your creativity, and that's something that will take you ages. आपको साल लग जाएंगे। तो ये मैंने भी किया है, आपने नहीं करना। और ये हम सब करते हैं, ये हम सब जो भी आर्टिस्ट लोग हैं ना, उनके अंदर कुछ होता है कि नहीं, आई वॉन्टेड टू बी लाइक दैट, जब लोग देखें। लेकिन नहीं, बस बनाएं और डालें। I think Just that's do my it. message. Just put it out. Just put anything out. After a year, you'll be better. You'll learn something. After 2 years, you'll be much more better. You'll learn something else. It'll just keep on adding. So just be out there. And to girls, to women, my message is that who run the world? Girls. Who run the world? Girls. Who run the world? Let's go. That's my message. But ये realize करना, I think by the end of this session, I just want to say one thing कि growing up, I was a tomboy. ठीक है, मतलब ये heels आज जो मैंने पहन ली है, मैं कभी imagine ही नहीं कर सकती थी कि मैं कभी heels पहन के, rings पहन के, and I'll be like, I would never think I can so relate to you with Yeah, everything right? that you're saying. I was like, I got this, I'm stronger than you. But to come to a point where I realized that being in your feminine energy, nothing is stronger than that. It's like connecting with your divine feminine. It's the creator energy. Like we create, we give birth, and to realize that and to tap into that power, it's our most powerful thing. So as a woman, as a female, creating content, dancing, singing, creating art, doing a job, whatever, tap into your feminine energy, and just, yeah, like
you know, I cannot use slur words, but like, F the world. Just be in your own feminine energy and tap into it and like accept who you are. Accept who you are. That's my biggest advice. Accept. Lovely. So this was Dania for you guys. I think this was a wonderful fireside chat with her because हमें बहुत कुछ वो जानने को मिला है जो हम दानिया को as a content creator शायद हमें इतना ना पता लगता. Thank you so much Dania for your time and for the lovely energy that you brought to the room and for your wonderful words. Thank you so much. Thank you so much. And thank you everyone for listening. Thank you. It was lovely. Thank you so much.